Hello, my brother and sister of the nations. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study and discuss about the Carnatic War. This is the very important chapter and very important topic. And also we will discuss about the entry of entry of French in this country. And also we are discuss Anglo-French rivalry and war in this country. Okay, तो हम लोग आज पढ़ते हैं the origins of Anglo-French rivalry. And this is the lectures number 7. And yesterday we have studied and we have discussed about the entry of East India Company, that is British, and the expansions of the British East India Company we have discussed yesterday class. So today we are discuss to mainly entry of France and Anglo-French rivalry को हम लोग आज पढ़ते हैं कि कैसा फ्रेंच एंट्री होता है, कब एंट्री होता है, कैसे एंट्री होता है. वी आर गोइंग टू discuss and this all the topic. This is a very important topic and this is my 7 lectures. It is मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम लोग आपको पढ़ा रहा है. तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में. तो वेरी फर्स्ट स्लाइड इट इज़ अ फेज 2. मैंने आपको बता दिया फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 इज एंट्री ऑफ योर्स ईस्ट इंडिया कंपनी and phase 2 is expansions of British East India Company, and today onward we are studying about phase 3. Phase 3 is entry of French in India and also the new chapters of Anglo-French rivalry and war in this country. Okay, so what happens by the 1664 and the French king is called Louis XIV. The Louis XIV is, by the way, it is very important for the world history का बहुत इम्पोर्टेंस राजा हुआ करता था. इनका बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस है. द लुइस फोर्टीन ही कहते हैं कि आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ. कहते हैं कि मेरा वचन ही शासन है. उसी के कारण से लुइस फोर्टीन थॉट वी do something great for our country. उसी के कारण से द लुइस फोर्टीन और डिस्कस हिज फाइनेंस मिनिस्टर इज कॉल्ड कॉलबर्ट को पूछते हैं कि हमें इंडिया का ऊपर हमें अपना एम्बेसडर भेजना है या हमें अपना गवर्नर भेजना है. तो बाय द 1667 द Franco Carens is the first persons who came to India and उनको भेजा जाता है for the expansions in India and trade in India. उसी के कारण से फ्रांको मार्टिन को बेचता है सूरत का रीजन्स में. एंड सूरत में यहाँ कौन बेटा है? यहाँ आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठा हुआ है. एंड ऑल्सो द फ्रांको कैरन्स इज ग्रेजुअली गो टू द दिस इज प्लेस इन द मछलीपट्टनम में जाते हैं वो अपना ट्रेड को एक्सपांसन करने के. उसका बाद कहा जाते हैं कि फ्रांको कैरन्स वेंट बैक एंड फ्रांको कैरन वेंट बैक. It is called one gentleman is came. Its name is the Franco Martin. When Franco Martin is came in India, and he is established in the Pondicherry या पुडुचेरी और पुडुचेरी को उन्होंने establish करता है. Pondicherry is over here, and permitted by the local governor is called the शेर खान लोधी. शेर खान से उन्होंने परमिशन मांगता है and he start here in the Pondicherry regions. So what happens after the this much regions? Here is Pondicherry, here is Machilipatnam, and here is Surat regions. In 1674, they are going to this Bengal regions. बंगाल रीजन्स में जाता है. बंगाल रीजन्स में जाता है तो वहाँ से परमिशन लेता है जहाँ मुगल रूल हुआ करता था. द मुगल का जो वंश गवर्नर्स इस शाइस्ता खान, उनसे परमिशन ले लेता है. उनसे आपका फ्रेंच लोग परमिशन ले लेते हैं. ऑल्सो स्टार्ट हियर इन दिस रीजन्स
this Hooghly region he started his fort and trading court वहाँ बनाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। एंड कहा जाता है कि 1672 टू 1674 तक दिस इज द एक्सपांसन फेज ऑफ द फ्रेंच पीपल, द फ्रेंच लोगों का ये एक्सपांसन फेज है। एंड व्हेन इट वाज द एक्सपांसन इन दिस फेज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज आल्सो trade in these older regions in the Surat and region is the Machilipatnam and all the this Coromandel coast में भी वो लोग आपका ब्रिटिश लोग जो है रूल कर रहा था। उसी का कारण से क्या होता है आपका, उसी का कारण this old thing what happened next happened आपका जो क्या होता है, जो जब आपका सूरत एंड मद्रास and Machilipatnam and Bengal में already the French are already based on this old region. This is the Surat regions. Okay, this is the Surat regions and also this is the Machilipatnam region. This is what happened, Machilipatnam regions, and also they are here in Arcot. This is the Arcot region, Arcot. एंड दिस इज द कर्नाटक रीजन को भी वो लोग कैप्चर कर देते हैं यहाँ तक। एंड उसके बाद कहाँ जाता है, एंड ऑल्सो दे आर बेस्ड ऑन दिस सूरत रीजन, दिस Pondicherry regions and also they are making in this Bengal region is called here in Chandranagar in the west Bengal Bengal region में they are create on the fort and the town in this regions of the Chandranagar and Chandranagar में जब वो लोग establish कर रहा था by 1690 में in the same time the British governor is called Job Charnock also the established in the region here in the Fort Williams में जो जॉब चार्नोक also the try to establish in Fort Williams, जब फोर्ट विलियम्स को दोनों यहाँ आमने सामने में दोनों फोर्ट बनाता है, there will be interest of conflict. The conflict where starts to the French in this English East India Company, ब्रिटिश का द्वारा दोनों ने क्या करता है, यहाँ कच्चा फाइट चलता है, they are started fighting to each other and they are bombards to each other. तो उसी का कारण the time and the durations of the time the Mughal rulers was ruling over the India, it was औरंगजेब. जब औरंगजेब ने दोनों को देखता है तो दोनों ट्रेड को लेके दोनों क्या कर रहा है, दोनों ट्रेड को लेके काफ़ी फाइट चल रहा है। उसी फाइट का कारण से औरंगजेब कहते हैं, भाई तुम दोनों बाहर से आया हो, you border came from the Europe and you are the trading in our country, my country, and you people are fighting to each other for the territory of my country. How dare you can do this nonsense thing? तो hence the उसका बाद ये क्या करता है, yours Aurangzeb is the use and implement the iron hand policy. What is the iron hand policy? Iron hand policy use करता है, दोनों को धुलाई मारता है, दोनों को पिटाई करता है, दोनों को टिक तक धुलाई मारने के बाद दोनों को कहते हैं कि अगर if you people fight against then I will out to both of you in this country. मैं अब दोनों को यहाँ से भगा दूंगा मेरा कंट्री से, because I don't like this nonsense thing, because this is my country. If you want to stay in this country, you have to peaceful, you have to tranquility, you maintain the sincerely how I have enacted the rule and regulations in this country. उसी का कारण से the French and British and all the Europeans are say कि जहाँ पना तुसी ग्रेड हो, we will not fighting to each other and also we will follow your rule and regulations what you have made in this country and we will peacefully हम लोग बैठेगा बोल के इन लोग कह देते हैं। उसी का कारण से जब तक 1690
to 1690 to 1707 1717 तक क्या होता है, इट इज कॉल्ड पैसिव पीरियड। व्हाट इज द पैसिव पीरियड? पैसिव पीरियड का मतलब है, पीरियड का मतलब, टाइम का मतलब है कि इन लोग आपस में फाइटिंग नहीं करता है। दैट इज ऑल्सो, दैट इज वेरी, वी कैन से ये लोग बहुत शांति और ये लोग चालू लोग है। दैट इज नॉट फाइटिंग टू neither the East India Company, neither this nor the French। तो डच ज़्यादा फाइटिंग नहीं करता है। डच फाइटिंग होता भी है तो आपका कहीं ना कहीं जो बंगाल का एक राजा हुआ करता था, तो उसी का कारण से आपका मीर जाफर का कारण से इसको फाइटिंग होता है, ये ब्रिटिश का साथ फाइटिंग होता है। डच जो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया करता था। तो व्हाट हैपेंड दिस केस, चलो यहाँ क्या है कि 1690 टू 1717 तक दिस इज द फेस ऑफ पैसिव पीरियड। ठीक है। तो क्या होता है जब ये पैसिव पीरियड जो है चलता है, जो पैसिव पीरियड चलता है, बिकॉज ऑफ हुम, बिकॉज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ने ये बोला है कि दोनों तुम लोग फाइट नहीं करना है, यू शुड फॉलो माय रूल एंड रेगुलेशंस इन दिस कंट्री। उसी का कारण से यहाँ तक फाइट नहीं होता है। बाय 1690 टू 1707 तक फाइट नहीं होता है। आफ्टर 1717 का बाद औरंगजेब का डेथ हो जाता है, औरंगजेब मर जाता है। उसी का कारण से द लॉर्ड ऑफ द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन वॉज स्टार्टेड। पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी इंडिया में जो पहले यहाँ जो मुगल का साथ में जो काम कर रहा था, and they are not fighting, they are not part of the Mughal, and they are the all the जब आपका ये later Mughal then came to power, the regional state and the regional kingdom, they are proclaimed as a independent state, and they are decided we are not follow to the rule of the Aurangzeb, and now we can rule our own state। उसी का कारण से बहुत सारा स्टेट जो इंडिपेंडेंट अपना आपको डिक्लेरेशन करता है, और उसमें से आपका मराठा, अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, बहुत सारा स्टेट जो इंडिपेंडेंट हो जाता है अपना आपको। एट दैट टाइम द यूरोपियंस आर बिकम द सुपरमेसी, एंड यूरोपियन आर द बिकम सुपरमेसी, एंड दैट इज द टेक एडवांटेज द फाउंडेशंस ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाई? बिकॉज द जब लेटर मुगल रूल कर रहा था, तो क्या हुआ आपका, जब एक किंग पावर का ऊपर में आता है, देयर इज किंग आर कॉल्ड द शायक फरोख्शियर। द फरोख्शियर कहा जाता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको कवर अप किया है, जो फरोख्शियर जो पावर का ऊपर आता है, द फरोख्शियर वाज द हेल्थ इशू। उसी हेल्थ इशू को लेके आपका जो ब्रिटिश लोग ने आपका उनको थोड़ा बहुत मदद करता है, जॉन सार्मन कहते हैं, वो आपको जाके मदद करता है। उसका बाद उसका बीमार ठीक ठाक होता है। आफ्टर बीमार ठीक ठाक होने का बाद, आफ्टर दैट द फरोख्शियर आर इनवाइट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, कहते हैं कि आप लोग को क्या मदद कुछ चाहिए है क्या। उसी के कारण से ब्रिटिश लोग कहते हैं यस वी आर नीड टू परमिट इन द दिस बंगाल रीजन। उसी का कारण से द फरोख्शियर आर इशू द फर्मन इज द ट्रेड परमिट इशू किया जाता है टू ट्रेड इन द बंगाल रीजन। ओके, ये बंगाल का रीजन है, यहाँ में इशू किया जाता है। उसी का कारण से द ब्रिटिश आर टेक एडवांटेज एंड द फाउंडेशंस टू रूल एंड दिस कंट्री। उसी का कारण से ब्रिटिश जो है पावरफुल हो जाता है, और पावरफुल होने का बाद धीरे धीरे पावरफुल होते हुए धीरे धीरे फ्रेंच और ये जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दोनों का आपस में कटाकटी होता है, फाइट चलता है। उसी फाइट को हम लोग कहते हैं कर्नाटिक वार। तो आज हम लोग कर्नाटिक वार को नहीं करा रहा है। कर्नाटिक वॉर जो है 3 फेज में होता है। द ट्री कर्नाटिक वॉर वाज कर्नाटिक वार आर टुक प्लेस, एंड थ्री कर्नाटिक वार को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेगा, उसको हम लोग डिस्कस करेगा। तो अभी आज का क्लास यहाँ तक कंक्लूड करते हैं। कल से हम लोग द ब्रिटिश एंड फ्रेंच का जो फाइट को देखेगा, दैट फाइट ईयर कॉल्ड द कर्नाटिक वार। द कर्नाटिक वार को कल से हम लोग करने की कोशिश करेगा, और आज के लिए यहाँ तक हम लोग का जो आज का क्लास को कंक्लूड करेगा।
And I request for, if you are not subscribe my channels, please do subscribe my channel, and also click the bell icon so that you can get notification when I upload videos on the YouTube. तो आप follow कीजिएगा, and thank you so much.